Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, this is Amit sir and today we are going to talk about the 11th standard and 12th standard English subject. Okay, so dear students, let's take an overview of our question paper on the basis of English subject. Okay, so as we know that our question paper has been divided in three basic sections: section A, section B and section C. Understand? Okay, our section A is belonging to the unseen passage based question. Understand? There will be the two questions in the format of unseen passage, so that questions will come in section A. And right now in this lecture video we have to talk about the section B, writing skill and grammar based question. Okay, in section B we will find the writing skill and grammar based question. Did you understand? And apart from this, section C, in section C we have to solve the questions related to our textbook. Did you understand? Okay, so basically in our as per the exam point of view and as per the study, we have to look at the three basic sections: the section A, section B and section C. Okay, and apart from this we have to just submit some assignments based on the 20 marks. Okay, that we just call that section as a section D. ठीक है, उसे हम सेक्शन डी भी बोल सकते हैं. सो बेसिक अगर आपके स्टडी से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड अगर हम अपने आप को अभी से फोकस कर लें तो हमें ये बात जानना है कि हमें यहाँ पर कितने प्रकार के सेक्शन की स्टडी करनी होगी. थ्री बेसिक सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद द सेक्शन बी and the entire section B is based on the writing skill and grammar. Okay, well, अगर सही मायने में मैं बताऊं डियर स्टूडेंट्स तो ये जो सेक्शन बी है ये इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि राइटिंग स्किल एंड ग्रामर ये आपको हमेशा और हमेशा काम आने वाली चीज़ है. राइट, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या पर्सनल लाइफ की बात करें, उन दोनों ही केसेस में आपको राइटिंग स्किल का यूज़ हमेशा करना पड़ता है. Understand? Well, either in government job or in a private sector, in both sections we have to use the writing skill to convey our messages, to convey our thoughts. Understand? As well as grammar, it will help you to enhance the knowledge, to solve the academic questions, as well as it will help you a lot for the any kind of competitive examinations, and further questions will you appear in the college examination. Did you understand? So in all point of view, the section B is very important. So let's have a look of that how many questions will come in section B and in which format the questions will appear. Okay, so the first question, firstly let me tell you that the section B will contain that entirely 30 marks. ओके, सेक्शन बी पूरे के पूरे 30 मार्क्स पे बिलोंग करेगा. ओके, ये हमारे 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड दोनों में कॉमन है. अंडरस्टैंड? वेल, सो हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है किस पे बेस्ड करने वाला है? बेस्ड ऑन नोटिस. ओके, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आपने ये 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ठीक है, ये इसलिए आपके लिए ये जो वीडियो होगा, ये लेक्चर जो होगा वो रिकॉलिंग हो सकती है. डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, सो जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये आपका बेस्ड किस में करेगा? नोटिस में. नोटिस कैसे लिखते हैं? अंडरस्टैंड? तो नोटिस कैसे लिखा जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ में भी बताने वाला हूँ. वेल, नेक्स्ट पोस्टर. ठीक है, नोटिस, पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट. जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी या व्यक्ति विशेष के द्वारा जब कोई नोटिस रिलीज़ की जाती है तो नोटिस का एक प्रॉपर फॉर्मेट हम अपने इस पोर्शन में पढ़ेंगे. वो हमारे किसका पार्ट होगा? राइटिंग स्किल का. राइट, इसी तरीके से हमने न्यूज़पेपर में या फ्लैक्स में बहुत डिफरेंट टाइप के पोस्टर्स देखे, तो पोस्टर्स बनाना भी एक प्रोफेशनल वर्क है. डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, तो पोस्टर प्रेजेंटेशन, हम पोस्टर कैसे बना सकते हैं, पोस्टर फॉर्म करने के कौन कौन से रूल्स होते हैं, और पोस्टर किस तरीके से आपको जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पोस्टर किस तरीके से डिजाइन करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपका किसके अंतर्गत आएगा? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट. आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या कई आपने लीफलेट्स में कई एडवर्टीजमेंट्स कई इंस्टीट्यूशन के, कई दुकान के आपने देखे होंगे, तो वो एडवर्टीजमेंट बनाना भी एक प्रकार से प्रोफेशनल वर्क है और जो किसके अंतर्गत आता है? आपका राइटिंग स्किल के. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस
शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस आइदर ऑफ नोटिस और पोस्टर और एडवर्टीजमेंट। नोटिस से, पोस्टर से या एडवर्टीजमेंट से रिलेट करते हुए कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा, ठीक है, एग्जाम में लिखना होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? और ये या तो आप नोटिस लिखेंगे या फिर पोस्टर लिखेंगे या एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, इन तीनों में से कोई दो क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको कोई एक सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड? और इसका मार्क्स कितना होने वाला है? 4। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यदि अगर आप चाहें तो यहाँ पर नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट बहुत ही छोटा सा पोर्शन है और बहुत ही इजी वे पे हम अंडरस्टैंड करके नोटिस, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट में 4 आउट ऑफ 4 कंप्लीट मार्क्स गेन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? वेल, तो इन सभी में नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट कैसे बनाते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये हम अपने वीडियो में अभी स्टडी करेंगे। वेल, नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो राइटिंग स्किल का सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द लॉन्ग आंसर। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर ये किस पे बेस्ड करने वाला है, ध्यान रखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका होगा, इसमें आपको या तो बिजनेस लेटर लिखने के लिए आएगा, या फिर लेटर टू एडिटर आएगा, या फिर एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद अ बायोडेटा। आप बायोडेटा के साथ में एक एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, या फिर लेटर टू स्कूल या कॉलेज अथॉरिटीज। डिड यू अंडरस्टैंड? सो इट मीन्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों प्रकार के लेटर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इन्हीं पर आधारित करते हुए आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टैंड? और इन्हीं 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, राइट? वेल, और यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स कंटेन कर रहा है? 6 मार्क्स। ये फिर से बता रहा हूँ, ये 11th एंड 12th दोनों के लिए कॉमन चैप्टर है, ठीक है, कॉमन तरीके से सेक्शन भी अपीयर करेगा आपके एग्जाम में। वेल, सो यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन में टोटल क्या स्टडी करना है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बेस्ड लेटर्स हम कैसे लिखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेटर, फॉर्मल लेटर्स के कौन कौन से मेन कंटेंट्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स के मेन कंटेंट्स क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर्स को लिखने का तरीका कैसा होता है, ठीक है, लेटर लिखने के लिए हम पेज का कौन सा साइड इस्तेमाल करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? कहाँ पर कैपिटल रहेगा, कहाँ पर स्मॉल रहेगा आपका कंटेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे होंगे, ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम जानेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, एंड द नेक्स्ट वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यहाँ पर वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है किस पर बेस्ड करने वाला है डियर स्टूडेंट्स? आर्टिकल राइटिंग, या फिर रिपोर्ट राइटिंग, या फिर स्पीच राइटिंग। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल राइटिंग करने के लिए, या फिर रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए, या फिर स्पीच राइटिंग करने के लिए आपको इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? और ये आपके 10 मार्क्स का होगा। वेल, तो यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा। लगभग 250 से 300 वर्ड लिमिट में आप लगभग समझ सकते हैं कि ऐसे के कंटेंट जितना आपको यहाँ पर अपने वर्ड्स यहाँ पर लिखने होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, तो आर्टिकल, रिपोर्ट या स्पीच किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है, किन बेसिक कंटेंट्स को ध्यान में रख के आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल या रिपोर्ट या फिर स्पीच आप रेडी कर सकते हैं। ये इसके कुछ कीन पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस वीडियो लेक्चर में या आगे आने वाली वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? और यहाँ पर आपके वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस का जो टोटल मार्क्स होगा वो है 10। अंडरस्टैंड? वेल, एंड द लास्ट वन, अभी इसी सेक्शन बी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, अभी तक हमने जो बात की वो राइटिंग स्किल थी, ठीक है, चाहे वो नोटिस हो, पोस्टर हो, एडवर्टीजमेंट हो, प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स हो, या फिर आपका स्पीच हो, आर्टिकल हो, या फिर आपके रिपोर्ट राइटिंग हो। डिड यू अंडरस्टैंड? ये आपके राइटिंग स्किल का हिस्सा था। अब हम बात करते हैं ग्रामर का। तो ग्रामर में डियर स्टूडेंट्स बेसिकली हमें अपने 12th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनना चाहिए रिलेटेड टू टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन। अंडरस्टैंड? सेम नरेशन, ओके, नरेशन के टाइप ऑफ सेंटेंस के आधार पर नरेशन सॉल्व करने की टेक्निक। नेक्स्ट, वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, एज पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस।
ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस के आधार पर आपको वॉइस कन्वर्ट करते बनना चाहिए। वेल, नेक्स्ट डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटरमाइनर्स एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जैसे हम अपने ग्रामर पोर्शन में स्टडी कर रहे होंगे। Are you getting my point? So dear students, these all 4 basic type of questions will appear in the examination with the section B in 11th standard and 12th standard both. Understand? Well, so let's begin with the short answer question. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम नोटिस, ठीक है, नोटिस, फिर उसके बाद बात करेंगे पोस्टर, फिर उसके बाद बात करेंगे एडवर्टीजमेंट की। वन बाय वन हम अब हमारी जो लगातार जो वीडियोस होंगी अब इसी टॉपिक पे बेस्ड करते हुए एक एक करके सारी वीडियोस आपको रिलीज होंगी। आपको सारी वीडियोस को देखते हुए ध्यान रखना है, ये मेरा ओपिनियन है कि सेक्शन बी अगर 30 मार्क्स का है तो डैम श्योर आप इसमें मोर देन 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं, बिकॉज नोटिस, पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट ये फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपका फॉर्मेट सही है डेफिनेट यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स, एज वेल एज बिजनेस लेटर एंड द लेटर, ऑल काइंड ऑफ लेटर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रॉपर फॉर्मेट। वेल, सो अगर आपका फॉर्मेट सही है, आपके कंटेंट सही है, और कंटेंट्स कहाँ से मिलेंगे इसमें भी मैं आपको बता दूं, नोटिस का और बिजनेस लेटर्स का या किसी भी लेटर्स का मैं आपको अगर इसमें कंटेंट्स बताऊं तो कंटेंट्स कहाँ से आपको सेलेक्ट करते बनना चाहिए, क्वेश्चन से। डिड यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन में ही सारे कंटेंट्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आपको बस उसको स्क्रूटनी करना, छांटना है, और छांटने के बाद प्रॉपर प्लेस में उस प्रॉपर फॉर्मेट में सेट कर देना है। राइट, यही आपकी टेक्निक आपको बहुत ईजी और कॉन्वीनियंट कर देगी आपके सेकेंड नंबर क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट, नेक्स्ट वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस, आर्टिकल, रिपोर्ट एंड स्पीच, ये इसका तो कुछ अपना अलग ही टेक्निक होता है। इसमें आपके थॉट्स लगेंगे, वर्ड पावर लगेगी, वोकैब्स लगेगी एंड टर्मिनोलॉजी लगेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट आपका जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन में ये सारे जो टेंस हैं, नरेशन है, वॉइस है, डिटर्मिनर्स हैं और भी अधिक सारे जो क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर हम ग्रामर के बेसिक क्वेश्चंस कहाँ से पिक आउट करेंगे या फिर ये सारे क्वेश्चन के हम एक्सपीरियंस कहाँ से करेंगे? तो मेरा आपके लिए एक सजेशन है डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, अभी रिसेंट ईयर पे जितने भी स्टूडेंट्स जो आपके पहले जो 12th स्टैंडर्ड जो आप इस बार पास आउट किए हैं जिन लोगों ने, आप उनसे क्या करिए, तीनों सेट के इंग्लिश के पेपर्स आप कलेक्ट कर लीजिए, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। राइट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी तीनों के क्वेश्चन पेपर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें से आने वाले ग्रामर बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं। इसके लिए मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, मैं भी अपने पेपर्स कुछ कलेक्ट मेरे पास में हैं, उन पेपर्स के माध्यम से मैं आपको आपका एक्सपीरियंस और आगे बढ़ाऊंगा। अंडरस्टैंड? एज वेल एज उसी पेपर के एक्सपीरियंस से हम ये देख पाएंगे कि आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच राइटिंग के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। राइट, वेल, और इसी तरीके से बिजनेस लेटर्स या फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स के कौन कौन से टाइप्स वहाँ पर आए हुए हैं, उसी के एक्सपीरियंस को और आगे बढ़ाते हुए और उसे भी कवर करते हुए हम अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन के लिए अपना बना सकते हैं एक्सपीरियंस। डिड यू अंडरस्टैंड? सेम थिंग। सो लेट्स डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नोटिस की, कि नोटिस को हमें नोटिस लिखते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, और वर्ड्स कंटेंट्स कैसे होने चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द नोटिस। ओके, सो स्टूडेंट्स, एज वी वर टॉकिंग अबाउट द नोटिस, ओके, सो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नोटिस राइटिंग की। ओके, वेल, जो कि सेक्शन बी का हिस्सा है। ओके, लुक इट, जब कभी भी आप नोटिस को आपको सॉल्व करना है, नोटिस आपको लिखना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। क्लियर है? वेल, सो क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, नोटिस, यू आर अजय, अ हेड बॉय ऑफ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल कोटा। यहाँ पर आपको टैग किया जा रहा है, आपका नाम अजय है और आप अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल कोटा के हेड बॉय हैं। राइट, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन इन योर स्कूल। सभी स्टूडेंट्स को, आपके अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को आपको इन्फॉर्म करना है इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम के विषय में। डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, तो जब कभी भी अगर हम नोटिस लिखें, ठीक है, तो नोटिस के कुछ रूल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले, नोटिस किस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लिखा जा रहा है। राइट, ओके, किस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, किस स्कूल के माध्यम से, किस कॉलेज के माध्यम से लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले उस स्कूल का नाम एकदम सेंटर में बीचों बीच में होगा।
क्लियर हो गई बात। सबसे पहले आप तो अब यहाँ पर किस स्कूल के विषय में बात हो रही है, अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के विषय में। तो यहाँ पर अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल कोटा ये आप बीचों बीच में लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट, यदि अगर आप यहीं पर किसी क्लब से बिलोंग कर रहे होते, ठीक है, कल्चरल क्लब से बिलोंग कर रहे होते, स्पोर्ट्स क्लब से बिलोंग कर रहे होते, तो आप उसका क्लब का भी नाम लिख सकते थे। कैसे, अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल कोटा, और यहाँ पर कल्चरल क्लब अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल कोटा स्पोर्ट्स क्लब। अंडरस्टैंड वेल। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल देना कि ये आखिर नोटिस किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस संस्था से लिखी जा रही है, फर्स्ट। सेकंड, उसके ठीक बाद आप ध्यान रखेंगे नोटिस डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देंगे, उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में बीचों बीच, एकदम बीचों बीच कैपिटल लेटर में ये नोटिस लिखना है, राइट, ये नोटिस वर्ड लिखना है। वेल, तो ये एकदम बीचों बीच लिखाएगा, आप इसे मिस ना करें। अगर आप जैसे इसे मिस करते हैं तो आपके मार्क्स लूज होने के चांसेस बन जाएंगे। वेल, उसके तुरंत बाद आप यहाँ पर अपने, अगर जैसे मैं नोटिस, जैसे मैं खड़ा हूँ इसके सामने में, तो आप लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे आप क्या लिख सकते हैं, डेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेट लिख दीजिए कि किस डेट में ये नोटिस रिलीज हो रही है। अंडरस्टैंड वेल। अब इसके बाद नोटिस को आपको क्या बोला जा रहा है, किसको इन्फॉर्म करना है, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। तो स्टूडेंट्स को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है दैट, कि अब क्या इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट, जो भी इन्फॉर्म किया जाता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर अभी फिलहाल में क्या इन्फॉर्म किया जाता है, इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन विल हेल्ड इन अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल ऑन, ठीक है। अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल में इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, इस डेट पर, ऑन मतलब यहाँ पर डेट लिख सकते हैं, यहाँ पर ओकेजन भी लिख सकते हैं, ऑन किसी पर्टिकुलर डेट में, ठीक है, आयोजित किया जा रहा है या किया जाएगा। ओके, ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम्स विल बी हेल्ड इन अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल ऑन पर्टिकुलर, जो भी आप डेट लिखना चाहें डेट लिख सकते हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल में इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम इस दिन किया जाएगा। वेल, नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर हमको कंटेंट्स करना है, स्टूडेंट्स को टैग करते हुए करना है, तो आप उस कंटेंट्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है, स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लासेस, हर क्लास से स्टूडेंट्स मे टेक पार्ट इन दिस एग्जीबिशन, इस एग्जीबिशन में सभी क्लास से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेक पार्ट मीन्स पार्टिसिपेट करना, राइट। एंड शो देयर प्रोजेक्ट्स टू HOD ऑफ साइंस बिफोर, और अपने प्रोजेक्ट्स को इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आप दिखा सकते हैं बिफोर, किसी एक डेट को आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए इस प्रोग्राम से पहले का, राइट। तो उस डेट से पहले आप अपने HOD को अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया, क्या हो गया आपका इन्फॉर्मेशन, राइट। लास्ट में आपको लेफ्ट कॉर्नर में ही जिस व्यक्ति के द्वारा, जिसे हाई अथॉरिटी बनाया गया है इस नोटिस को लिखने के लिए, वो अपना नाम लिखे और उस किस डेजिग्नेशन के बिहाफ में वो लेटर को, नोटिस को लिखा है, तो अपना डेजिग्नेशन लिख दे। जैसे अभी नोटिस किसको लिखने के लिए बोला गया था, अजय कुमार, जो कि कौन है, हेड बॉय ऑफ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। डिड यू गेट माई पॉइंट। वेल, इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कभी भी आप नोटिस लिखें तो नोटिस आपको ब्लॉक में लिखना है। नोटिस लिखने के बाद उसको आपको चारों ओर से ब्लॉक में कवर कर देना है। डिड यू गेट माई पॉइंट। ध्यान रखेंगे मार्किंग कहाँ कहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अगर आप ब्लॉक बनाना मिस करते हैं तो बिल्कुल आपके मार्क्स कट जाएंगे, पहला। दूसरे नंबर में अगर आप ये नोटिस टैग नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, दूसरा। नोटिस किस व्यक्ति ने लिखा है, किस डेजिग्नेशन के साथ लिखा है, ये नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो तीन बहुत ही मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपके मार्क्स बिल्कुल कट सकते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। नोटिस बीचों बीच में लिखना है, हेडिंग लिखनी है, नोटिस एंड डेजिग्नेशन, ये तो एकदम फिक्स है, जो कि कहाँ से मिलने वाला है आपको, क्वेश्चन से, कोई डाउट नहीं है। वेल, और लास्ट में आपका मेन क्या होता है, आपका कंटेंट्स। मेन कंटेंट्स में आप किस बात का ध्यान रखें, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। क्या हो रहा है, इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम हो रहा है,
कहाँ हो रहा है, अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल में हो रहा है। कब हो रहा है, इस डेट पे हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कब, कहाँ और कैसे, इसका जब आप आंसर करेंगे ना तो अपने आप जो आपका नोटिस है उसका मेन कंटेंट्स रेडी होता जाएगा, राइट। अब इसको यहाँ पर आप मेन कंटेंट्स को लिखते समय आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, इस बात को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? चलिए फिर से फ्लैशबैक कर लेते हैं। नोटिस में आपको किस बात का विशेष ध्यान रखना है? सबसे पहले नंबर में क्या पढ़ना है आपको? क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद किसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है, नोटिस लिखने के लिए किसे अथराइज्ड किया गया है वो पर्सन आप पिक कर लीजिए। किस ऑर्गेनाइजेशन से लिखा जाना है नोटिस, तो ताकि वो हेडिंग में लिखा जा सके वो लिख लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? वो आप केयर कर लीजिए। तो दो चीज़ें केयर होते ही फिर आप वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बीचों बीच लिखें, फिर उसके तुरंत बाद नोटिस कैपिटल लेटर में नोटिस लिखें, फिर उसके बाद साइड में आप लेफ्ट साइड में डेट डाल के मेन कंटेंट्स आप लिखना शुरू कर लीजिए। और मेन कंटेंट्स लिखते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है? व्हाट, वेयर एंड व्हेन। व्हाट, वेयर, व्हेन, और थोड़ा सा और अगर आपको कंटेंट्स खींचना है तो हाउ का भी प्रोसेस ले सकते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो यहाँ पर एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से हमने नोटिस को बनाया। तो नोटिस में जो आधारभूत गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिए कंटेंट्स हर बार अलग हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, कंटेंट्स हर बार अलग हो जाएगा, बट जो हमेशा अल्टीमेटली हमेशा जो फिक्स रहेगी और जो वैल्यूएटर होगा, जो कॉपी आपकी चेक करेगा, वो जो आपको बेसिक हाईलाइट कहाँ पर से देखेगा, आपने बॉक्स बनाया कि नहीं, पहला। दूसरा, आपने नोटिस कैपिटल लेटर में लिखा कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, आपने हेडिंग बराबर प्रॉपर वे पे लिखा कि नहीं, आपने डेट बराबर लिखा कि नहीं, क्वेश्चन में आने वाले वेन्यू, क्वेश्चन में आने वाले डेट, क्वेश्चन में आने वाले टाइम को आपने प्रॉपर मेन कंटेंट्स में लिखा कि नहीं, राइट, ओके। एंड लास्ट, किस अथॉरिटी के माध्यम से, किस डेजिग्नेशन के माध्यम से इस नोटिस को रिलीज किया गया है, ये पॉइंट बस बिल्कुल 3 से 4 पॉइंट आप ध्यान रखिए, आपका नोटिस बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। आई होप आपको नोटिस का ये पहला फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हर बार फॉर्मेट तो सेम रहेगा माय डियर स्टूडेंट, हर बार फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ मेन कंटेंट्स में वेरिएशन आएगा। तो क्या मैं इस बात की उम्मीद करूं आपसे कि आप नोटिस में जो आधारभूत गलतियां जो होती थी स्टूडेंट्स से वो नहीं होंगी। ध्यान रखें 11th एंड 12th बोथ स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझ सकता हूं कि नोटिस के क्वेश्चन आने पर, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। अब यहाँ पर आप मिनिमम कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं? मिनिमम आप 3 मार्क्स तो कर ही सकते हैं। ध्यान रखेंगे 1 मार्क्स बस आपसे चूक सकता है, कहाँ पर? मेन कंटेंट्स को लिखने में। तो ध्यान रखें, अगर आपने बॉक्स, नोटिस, कैपिटल और डेजिग्नेशन का ध्यान रखा तो डेफिनेट आप वहाँ पर 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, जो मैंने पहले ही बताया, आपको अभी रिसेंट एग्जाम्स के सेट नंबर A, B, C तीनों को कलेक्ट करना है अपने सीनियर्स से, और कलेक्ट करने के बाद वहाँ पर आए हुए नोटिस को इसी फॉर्मेट में सेट करने की कोशिश करिए, राइट। और जब हम स्कूल में मिलेंगे, ठीक है, तब उस टाइम में आपका वो नोटिस में प्रॉपरली चेक भी कर लूँगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सो नाउ कीप प्रैक्टिसिंग। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि पोस्टर किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, एडवर्टीजमेंट किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट में किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, इन सारी बातों को हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने अगले वीडियो में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेल, सो नाउ टेक केयर, keep studying, be safe, stay at your home, obey your parents. Thank you.